Dear students, today I am starting consumer equilibrium for a microeconomics for class 11th standard. Today your point name is what do you mean by consumer equilibrium? Consumer equilibrium, at which point consumer get maximum satisfaction, is known as consumer equilibrium. It means, in other words, we say that those points consumer get maximum satisfaction. Consumer get maximum satisfaction measured by two ways, two approaches. First, cardinal approach. Second, ordinal approach. So the question generated, what do you mean by cardinal approach? Cardinal approach means in this approach, satisfaction is measured by arithmetically. For example, 1 unit, 2 units, 3 units, 4 units. It is also known as marginal utility approach. This approach given by Professor Alfred Marshall. In this approach, the satisfaction measured by the 1, 2, 3, 4 or arithmetically. In other words, we say that suppose that I am taking first grade, then satisfaction is 40 units. Second grade, then satisfaction I had 36 units, and then so on. So this satisfaction indicated by the units on the behalf of numerical. So this type of approach is known as cardinal approach. In other words, we say that those approach satisfaction measured by numerically or arithmetically is known as cardinal approach. Next point, ordinal approach. In this approach, satisfaction is measured by preference or rank order. For example, first rank, second rank, third rank, etc. It is also known as indifference curve analysis approach. This approach given by Professor J.R. Hicks and R.D. Allen. So this approach is known as Hicks and Allen demand preference approach. Ordinal approach means in this approach, satisfaction is measured by preference or rank order. For example, suppose that I am taking 2 or 3 items and name are apples, mangoes and bananas, and firstly prefer to apple, then we will indicate first rank, then mangoes second rank, then bananas third rank. So those satisfaction depend on the rank or preference order is known as ordinal approach. And this approach given by Professor J.R. Hicks and R.D. Allen. So this approach is known as Hicks and Allen demand preference approach. Let us start the Hindi version. आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज आपका पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है, यानी कि जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा जो है संतुष्टि प्राप्त होता है, उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये अधिकतम संतुष्टि का जो मापन है, मेजरमेंट है, वो 2 अप्रोच से होता है। एक पहले को कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि कार्डिनल अप्रोच क्या है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब ऐसे अप्रोच को कहते हैं जिसमें कि संतुष्टि को हम न्यूमेरिकली या और अर्थमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जो अपने सेटिस्फेक्शन को हम 1, 2, 3, 4 में एक्सप्रेस करते हैं। मान लेते हैं, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि हमने पहली रोटी खाई, उसमें हमको संतुष्टि 40 मिला, दूसरी पे 36 मिला, तीसरी पे इसी तरह कम होता गया। लेकिन ये जो है हम एक्सप्रेशन किसमें कर रहे हैं, अर्थमेटिकली और न्यूमेरिकली कर रहे हैं। तो जो एक्सप्रेशन हम न्यूमेरिकली और अर्थमेटिकली करते हैं, तो उसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? ऑर्डिनल अप्रोच में ये होता है कि जो भी सेटिस्फैक्शन का मेजरमेंट होता है वो रैंक या प्रेफरेंस ऑर्डर में होता है। चूंकि ये अप्रोच जो है प्रोफेसर J.R. हिक्स और R.D. एलन द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे हिक्स एंड एलन डिमांड प्रेफरेंस अप्रोच भी कहा जाता है। और कार्डिनल अप्रोच को प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया है, और इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। अब यह अप्रोच हिक्स एंड एलन के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसे हिक्स एंड एलन डिमांड प्रेफरेंस अप्रोच कहा जाता है। और इसे हम एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हम जो है 3 वस्तुएं हमको जो है कंज्यूम करनी है।
वो 3 वस्तुएं हैं, आम है, सेब है और केले हैं। अगर हम इन तीनों में सबसे पहले अगर हम लाइक करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं सेब को, तो हम उसको पहला रैंक देंगे। उसके बाद अगर हम आम को प्रेफरेंस करते हैं तो दूसरा रैंक देंगे, और केले को सबसे लास्ट हम करते हैं तो तीसरा रैंक देंगे। तो अगर जो हम सेटिस्फैक्शन का मेजरमेंट अगर हम रैंक वाइज करते हैं तो उसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।